गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। फिर आज चलते हैं हम लोग आज इस नाउन नंबर से रिलेटेड आज के टॉपिक की ओर। और नाउन नंबर से रिलेटेड है हमारा थोड़ा हट करके है। आज का जो टॉपिक है हमारा नाउन नंबर से रिलेटेड, वो नाउन्स को मेंशन किया गया है जो ऑलवेज ही प्लूरल फॉर्म में मेंशन होते हैं, कभी उनका सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता। और वैसे नाउन्स की लिस्ट हमारे यहां है, आप देख रहे हैं एरो मार्क में यहां मेंशन किया गया ओनली द प्लूरल फॉर्म 1 2 3 3 प्लस साइंस में आप यहां देख रहे हैं। टूल्स के नेम में कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे टोंग्स, आपने देखा होगा वो टूल जिसे आप कह सकते हैं क्या कहूं मैं उसको, ये कह सकते हैं टोंग्स चिमटा कह सकते हैं, राइट। इन हिंदी इसे टोंग्स चिमटा कहेंगे। प्लायर्स आपने खूब सुना होगा, और इसको देख रहे हैं, इसकी स्पेलिंग क्या है, PLIERS, प्लायर्स। दैट इज कॉल्ड इन हिंदी, that is the it means modified form in Hindi, that is wrongly pronounced the word, and that word is pronounced pilas. That is pilas, not pilas, that is wrong. Pilas is wrong. लेकिन अक्सर आप मैकेनिक को सुनते होंगे ये बोलते हुए कि pilas, give me the pilas. No, that is pliers. Remember this word, pliers. Next is pincers. This is also a type of instrument here, a tool. Scissors, I think you are very familiar with this because this instrument, this tool is already found in, I think, in everybody's house. With the help of this tool, scissors, something is cut, just as a piece of cloth or piece of paper is cut. Spectacles. It means the device that is used for seeing anything clearly, especially in old age, जिसे आप हिंदी में चश्मा कह लेते हैं। गॉगल्स, उसी का स्पेक्टिकल्स का दूसरा फॉर्म ये गॉगल्स है। नेक्स्ट है हमारे कंपासेस है। कंपासेस आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, बच्चों का जो जियोमेट्री से संबंधित जो पढ़ते हैं वो, तो उसमें कंपासेस होता है, और वो उसी कंपासेस के लिए आ रहा है हमारा वर्ड। ये टूल से रिलेटेड। गारमेंट्स में चलते हैं, गारमेंट्स और आर्टिकल्स में हमारे आ जाते हैं जींस। नौजवानों की, किशोर वय के, टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स की आप देख रहे हैं सबसे पहली पसंद क्या होती है, वो जींस, दैट वेरी ट्राउजर्स ऑफ जींस, वो जींस। नेक्स्ट है हमारा ब्रीचेज, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ गारमेंट। ट्राउजर्स, आप जिसे पैंट्स कह लेते हैं, ट्राउजर्स है। शूज, दैट इज ऑल्सो फाउंड इन पेयर, शूज। सॉक्स जिसे आप पैताबक कह लेते हैं, मोजा कह लेते हैं। नीकर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ गारमेंट, दैट इज नीकर्स इज an inner garment, it's especially. And drawers, garments. Shorts, half pants is shorts. And tights, the tight pants, especially this type of garment is used by the athletes especially, or by the swimmers. That is tightly that fits the swimmer's body tightly, so that is tights especially from the waist to the lower part of the legs. So tights. And gloves, this is also found in pair and in both the hands over the fingers, so that the fingers and the front part of the hands may be protected from something, so that is gloves. I think you all are familiar with all these words, tools and garments. Now some other nouns. This is most important, and almost these words are often asked in the competitive exams. Because these words are generally, especially it is found and it is already mentioned in so many competitive books, that consist or that provides the stuff especially related to the competitive exams. But here I have already collected some words from the dictionary, standard dictionary, for you. Whereabouts, this is the most important word. Try to understand the meanings of these words. Whereabouts is noun plural, that is always mentioned in the plural form. We can't and we are not to use the word whereabout anywhere. No,
Whereabouts means the expected places where somebody is found, where somebody spends time. Those very expected places is whereabouts. Whereabouts. Outskirts means the distant place from a city, especially from the center of a city, the utmost part, especially the utmost part from the center of a city is called outskirts, not outskirt. Just as my house is located in the outskirt of this town, no. My house is located in the outskirts. This word outskirts is only found to be asked in the competitive exams and also whereabouts. So the most important words which are oftenly asked in the competitive exams, I am going to underline them. Next is in-laws. In-laws, just as you know the word parent. Parent means either mother or father. It is also used in the singular form, and parents means both, mother and father both. Parent either mother or father, parents means mother and father both. Suppose the head of the organization, especially the principal of a school, asks his student that he has to come with his parent. Here the principal says that he has to come with his parent, means the student may come either with his mother or with his father. But if the principal asks the students to come with his parents, then it shows that the student is asked to come with both of them, mother and father both. In the same way here, in-laws means here what? Both the mother and the mother-in-law and the father-in-law both are in-laws. But it is not mentioned, it is never mentioned in the singular form, just like in-law. Next is obsequies. This is what? Obsequies. This is most important, and this is the collection of rituals, especially the religious rituals that is performed especially during cremating a dead body or during burying a dead body. Those religious rituals are collectively known as obsequies. Understand please, because these words are sometimes asked as a one word substitution. That is why I am already defining these words ताकि आप समझ ले सकें. So obsequies is what? The religious rituals that are performed during the cremation of a dead body, means during burning the dead body to ashes, और during burying the dead body, या तो मृत शरीर का दाह संस्कार करने के दौरान जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं हम, या उस मृत शरीर का दफन करने के दौरान, मिट्टी के अंदर दबा देने के दौरान जो हम लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं अपने अपने रिलीजन्स के अनुसार. हिंदू हैं तो हिंदू अपने रिलीजन्स के अनुसार, मुस्लिम है तो मुस्लिम भाई अपने रिलीजियस रिचुअल्स को अपने हिसाब से परफॉर्म करते हैं. सो इंक्लूडिंगली ऑल दोज रिलीजियस रिचुअल्स आर नोन एज obsequies. Obsequies is also most important here. Next, nuptials. Nuptial, understand please here. Nuptial, N-U-P-T-I-A-L. Nuptial is an adjective, means related, marital, it may be said, marital, means related to marriage, so nuptial, marital. But here it is not nuptial, this is nuptials. Nuptials means marriage ceremony, or the rituals especially, or the activities that are performed during the marriage ceremony. All those religious activities during the marriage ceremony that are performed during the marriage ceremony are known as what? Nuptials. Nuptials in the plural, not in the singular form. If it is found nuptial, this is not a noun singular, this is an adjective. Okay. Now here next, nuptials, chattels and assets, both are synonymous to each other. Chattels and
assets means property, and these two words are not mentioned in the singular form. Chattels, just as especially the wife was considered during the 20th century or during the 19th century, the wives were considered, understand please, pay attention, the wives were considered as the chattels. The wives were considered as the chattels during the 19th century. Means what? The wives were not considered as the life partner, as the counselors, as the advisors, or as the friend. Okay? So only उस समय 19th century के दौरान 1801 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक महिलाओं को किस रूप में, खासकर पत्नियों को किस रूप में, मात्र एक घर की एक संपत्ति, एक प्रॉपर्टी के रूप में समझा जाता था. सो हियर chattels means property or assets. Both are synonymous to each other. Environs, that is also most important. Environs means what? Yeah, environ means the surrounding area of a particular place. The surrounding area around, just as the environs of my native place is really very nice, is really, or the scenery of my environs, is most praiseworthy, बहुत ही प्रशंसनीय है. The scenery of my environs means the surrounding area near my house, that is environs. So that very environs. Tidings, most important also. This is sometimes this word is also mentioned as the one word substitution, and its equal form means its synonymous word is news, information, that is news. But news is mentioned in the singular form, but tidings is mentioned in the plural form, a set of informations. Okay, so that is tidings is equal to news. Thanks, I think this is very common word and you are so familiar. Whenever somebody helps you, you say thanks or you say thank you. I thank you. Thank you in this sentence, thank you or see you. ये क्या है हमारे इन दोनों सेंटेंसेस में आई का ओमिशन किया रहता है. See you, I see you again को क्या बोलते हैं हम लोग? See you again. I is omitted. Who will see you again? कौन आपसे फिर मिलेगा? I will see you again. I see you again. उसी तरह से आप बोलते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो आप बोलते हैं thank you. Thank you means who thanks you? I thank you. I is already, it is already understood. It is considered already. So thanks, thank you में thank हमारा वर्ब है. I thank you. But thank जब नाउन के रूप में आएगा तो सिंगुलर नहीं. He wished me thank. No. उसने मुझे thanks कहा. तो कहा means he wished me thanks. Just as congratulations आपने सुना होगा. This word is also mentioned always. Here I would like to include this word congratulations. जब आप कोई व्यक्ति, आपका कोई साथी, कोई दोस्त जब कोई अचीवमेंट पाता है लाइफ में तो आप उसे कांग्रेट करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं. सॉरी, CONGRATULATIONS. This word is also mentioned in the plural form. Congratulations. This is also very commonly it is used. So congratulations. Thanks, I think you are so much common, so much familiar. Arms is also used always in the plural form. And arms means what? Arms is means the goods, especially money or food or grant that are provided to especially a beggar. That is arms. A beggar is knocking at the door, begging his alms. Someone is knocking at the door, begging his alms, not begging his arm, not arm, alms. You have to remember it. That all these words are mentioned always in the plural form, not in the singular form. Next is
Riches, yes, property again. Synonymous word, chattels or assets. Riches, noun. R-I-C-H, rich is adjective. I would like to write here R-I-C-H, rich is adjective. Means what? Affluent, prosperous it may be said. Its synonymous word is affluent. Richness is noun, uncountable means what? Affluence, prosperity, संपन्नता जिसे आप कहते हैं. So rich adjective, just as my friend is rich means my friend is affluent. He belongs to an affluent family. He belongs to a rich family. So rich is adjective, but riches, when the word rich is already suffixed with es, that becomes a noun, means property. Riches means wealth, property, wealth. Ives, this is also very common word. Ives and ives, riches, ives and alms. Ives is, I think you would have seen the outer part of your house where the roof is extended outside of your house, just above the wall. Okay, जिसे आप कह लेते हैं छज्जा, छज्जा. Okay, that is eaves. Eaves means I have seen a nest of some bird. I have seen the nest of some birds under the eaves. मैंने इव छज्जे के नीचे वेंटिलेटर में मैंने I have seen the nest of a bird in the ventilator under the eaves. eaves के नीचे वेंटिलेटर में मैंने किसी चिड़िया के घोंसले को देखा है. Clear? So now annals, annal. Pay attention here. Annals is noun. Annals, noun means this word is also asked in the competitive examinations as one word substitutions. Annals means the record of some events. The record of some events. Annals, and annal is an adjective. Pay attention here to the word A-N-A-L. Annal is an adjective. Just as rich is adjective and its synonymous word is affluent, A-F-F-L-U-E-N-T, affluent, or prosperous, P-R-O-S-P-E-R-O-U-S. And annal adjective means related to the part of the body named anus, through which the digested food is excreted from or discharged from your body. That part of the body is anus. जिसे हिंदी में मलद्वार कहते हैं, मलद्वार. उसी एनस का एडजेक्टिव क्या हो जाता है हमारा? एनल मीन्स related to the anus, A-N-U-S, anus. And anus is the part of the body through which the digested food is already discharged out of the body. That is anus, जिसे हिंदी में मलद्वार कहते हैं. So anal देखेंगे, गौर करेंगे यहाँ A-N-A-L, anal is the adjective of anus. Okay, anal. Anal is adjective, A-N-A-L, singular, but in the annals, A-N-N-A-L-S, annals is noun. Attention please. Next is innards. Innards means all the entire internal system inside our body, whether it is related to the respiratory system, circulatory system, digestive system, reproductive system. All these systems means all the organs and organelles regarding inside our body is what? Innards. That is also most important. So these words were already defined. Now let us come to the practice set, and this set is related to error detection. Especially मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि एरर डिटेक्शन से ही रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाए, क्योंकि एरर डिटेक्शन से ही रिलेटेड सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं.
अभी तो मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मैं पीटी निकालने के ख्याल से एरर डिटेक्शन का दे रहा हूं। जब मेन की बात आएगी तो मेन में आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना होता है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपके पास राइटिंग स्किल की कमी होती है। तो हम राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप करें, उस पे भी पार्ट वाइज करके आपको वीडियो दिया जाएगा। एंड आई एश्योर यू कि आपकी राइटिंग स्किल गारंटी से बहुत ही इनहांस होगा, डेवलप्ड हो जाएगा। आप पेशेंस रखें, बस एक एक करके वीडियो क्लिप्स को आप देखते रहें। यदि मैं चूंकि मैंने कहा है कि यदि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कमांड कर लिया तो सबसे पहले रिटन सेंटेंसेस की मीनिंग को आप अच्छी तरह कंसीव कर लेंगे और सेंटेंसेस फॉर्मेशन में भी आपको मदद मिलेगी। सो कम ऑन, चलते हैं इन 10 सेंटेंसेस। 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। आप उबेंगे तो नहीं कि अरे बाबा आज 10 सेंटेंसेस मींस वीडियो क्लिप बहुत लंबा हो जाएगा भाई। तब तो देखिए, मैं कहता हूं मैं मैराथन का मैं चाहता हूं आपको खिलाड़ी बना देना, 100 मीटर्स का रेस नहीं। नो नो नो, क्योंकि जब आप 10 किलोमीटर दौड़ने की अगर आपने अपने अंदर वो कैपेबिलिटी, अपने अंदर वो एनर्जी और अपने आप को स्टेमिनेटेड बना लिया, एनर्जेटिक बना लिया 10 किलोमीटर का रेस जीतने का, तो 100 मीटर्स तो एकदम चुटकियां बजाते आप एकदम क्वालिफाई कर लेंगे। डंके की चोट पे आप कहेंगे यस आई विल क्वालिफाई द रेस, आई विल बी द विनर इन दिस रेस। इसलिए मैराथन के बारे में सोचिए। कम ऑन, the first sentence, but just before starting the first sentence I would like to read the instruction here, and we will here try to understand what the instruction is about and what we are asked to do as per the instruction. So the instruction is here: detect the erroneous part in the following sentences. erroneous part को, wrong part को आपको निम्नलिखित sentences में आपको erroneous part को आपको डिटेक्ट करना है। और सारे एरर सब इन्हीं सारे वर्ड से ही रिलेटेड है जितना मैंने यहां ये अभी डिस्कस किया। नंबर 1 है हमारा द रिचेज। अब ये भी वर्ड आया था जी, कहां है? ये रहा रिचेज। रिचेज, कम ऑन हियर, मेरी फिंगर के पास देखिए, यहां पर रिचेज है ना। मैंने क्या बताया? प्रॉपर्टी, वेल्थ। तो अब ये आ रही बात कि द रिचेज ऑलवेज ट्राई टू क्रश द इकोनॉमिकली वीक पर्संस। सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आपको समझना है। रिचेज हमारा किस रूप में मेंशन किया गया? नाउन। प्लूरल फॉर्म में भी है, बिल्कुल है जी। ऑलवेज ट्राई, और ये जब फर्स्ट में आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। ऑलवेज इज एडवर्ब हियर, एडवर्ब ऑफ टाइम। ट्राई इज हियर V1 फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब है वेल्थ जो है, वो सारी प्रॉपर्टी जो वो कोशिश करती है टू क्रश संपत्ति, प्रॉपर्टी, वो रिचेज, वो वेल्थ जो है वो कोशिश करती है क्रश कर देने की, डिस्ट्रॉय कर देने की। किसको? द इकोनॉमिकली वीक पर्संस को, आर्थिक रूप से कमजोर और विपन्न लोगों को क्रश कर देने की हमेशा कोशिश करती है। संपत्ति नहीं करती है कभी कोशिश। उस संपत्ति का जो मालिक होता है, मींस रिच पर्सन जो होता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि जो इकोनॉमिकली वीक पर्संस हैं उनको क्रश कर दो, दबा दो, ट्रेड कर दो, कुचल डालो। इसलिए हमारा क्या ये संपत्ति कोशिश करती है क्रश करने की? नो नो। तो फिर संपन्न लोग कोशिश करते हैं। तो यहां हमारा क्या होगा? द रिचेज इज राइट हियर? नो, हियर ए इज रॉन्ग। व्हाट विल बी यूज्ड? हियर ए इज रॉन्ग। आंसर इज हियर। नंबर 1 का आंसर है हमारा ए। रिचेज की जगह अब क्या होगा? RICHES की जगह क्या होगा? रिच हो जाएगा। रिच। अब बात रही कि रिच क्यों होगा? ये रिच तो एडजेक्टिव होता है। रिच इज एडजेक्टिव मींस एफ्लुएंट। तो क्या एडजेक्टिव हमारा सब्जेक्ट बनता है कहीं? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने द रिच लिख दिया। यस, अब ये जानना है कि द प्लस एडजेक्टिव क्वालिफाइंग समबडी इज इक्वल टू नाउन प्लूरल। जो वो एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति को क्वालिफाई करता हो, उन एडजेक्टिव के पहले अगर आपने द का प्रयोग कर दिया तो वो क्या बन जाता है हमारा? नाउन प्लूरल। जैसे ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, somebody को क्वालिफाई करता है ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया? ईमानदार लोग।
ब्लाइंड इज क्या, किसी समथिंग को क्वालिफाई करेंगे. द हाउस इज ब्लाइंड, द डोर इज ब्लाइंड. नो, ही इज ब्लाइंड, रमेश इज ब्लाइंड, राजू इज ब्लाइंड. समबडी को क्वालिफाई करने के लिए वो एडजेक्टिव है. और अगर उस ब्लाइंड के पहले हमने द का प्रयोग कर दिया तो द ब्लाइंड मीन्स व्हाट, द पीपल हु आर ब्लाइंड. एकदम याद रखेंगे. एक मुझे याद आ रही है बात, H.G. वेल्स की कहानी पहले पूर्व में बिहार बोर्ड के सिलेबस में हुआ करता था. उस स्टोरी का टाइटल था द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड. राइट, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड मीन्स देश किनका, ऑफ द ब्लाइंड, ऑफ द ब्लाइंड. वही द प्लस एडजेक्टिव ब्लाइंड आ रहा है, मीन्स अंधों का देश, ना कि द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड्स. नहीं, द प्लस एडजेक्टिव क्वालिफाइंग somebody is equal to noun plural. आई थिंक कॉन्सेप्शन क्लियर हो गया होगा. और वही आएगा हमारा द रिच मीन्स अमीर लोग, द पुअर मीन्स गरीब लोग, द ब्लाइंड मीन्स अंधे लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग. क्या द स्वीट भी होगा, मीठे लोग. For qualifying somebody, the word adjective sweet is used. No, sweet is used for qualifying something. Sour is used for qualifying something. The sour means क्या, खट्टे लोग. लोगों का कहीं कोई ये क्वालिटी शो करने के लिए सावर और स्वीट का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल नहीं. तो मैं समझता हूं कि आपने इस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दिया गया आपको, ये नोटेबल है कि द प्लस एडजेक्टिव क्वालिफाइंग समबडी इज इक्वल टू नाउन प्लूरल. कम ऑन, एडजेक्टिव की जब चर्चा मैं करूंगा, अभी तो नाउन चल रहा है, तो फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे निश्चित तौर पे. फिर एक बार हम लोग विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे. कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जैसे द एडजेक्टिव्स, द प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जैसे ब्रिटेन नाउन ब्रिटिश प्रॉपर एडजेक्टिव, चाइना प्रॉपर नाउन चाइनीज प्रॉपर एडजेक्टिव. और द चाइनीज मीन्स द पीपल लिविंग इन चाइना, द ब्रिटिश मीन्स द पीपल लिविंग इन ब्रिटेन, द इंग्लिश मीन्स द पीपल लिविंग इन इंग्लैंड. मेरा एक वीडियो क्लिप भी होगा कि इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी या अंग्रेज, उसमें आप देखिए विस्तार से मैंने उस पर प्रैक्टिस सेट दिया है कि इंग्लिश का मीनिंग अंग्रेजी या अंग्रेज. आप उस वीडियो क्लिप को देखें, मेरे चैनल पे जाकर उस चैनल लिस्ट में ढूंढें. कम ऑन हियर नाउ. सो ये क्लियर हो गया. फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पार्ट ए इज रॉन्ग. द वर्ड इन प्लेस ऑफ द वर्ड रिचेज व्हाट विल बी यूज्ड, रिच विल बी यूज्ड. Come on now to the second sentence. Here this is answer zone, and in the answer zone I have written here that in the first question part A is wrong. Part A is wrong here, and riches is wrong. In place of rich will be used, that will be right. Number 2, the rich lead one to be arrogant and get destroyed. The rich, अभी आ गया सुधार करके riches की जगह rich आ गया, है ना. द रिच मीन्स अमीर लोग. गौर करेंगे, अमीर लोग लीड वन, अमीर लोग किसी व्यक्ति को लीड करते हैं, ले जाते हैं. किस तरफ ले जाते हैं भाई? टू बी एरोगेंट. एरोगेंट होने की, घमंडी बनने की स्थिति. एरोगेंट इज एडजेक्टिव, एरोगेंस इज नाउन. सो एरोगेंट होने की स्थिति तक ले जाते, अमीर लोग एरोगेंट होने की स्थिति तक ले जाते हैं. या वो संपत्ति, वो धन संपदा. यस, किसी बच्चे को, किसी को यह कह दिया जाता है, बाबू आपको सोचना किस बात का है, माँ भी जॉब में, बाबूजी भी जॉब में, ये इतने सारे प्रॉपर्टी, आप तो नए भी पढ़ोगे, नए भी जॉब करोगे, तो इसका कहना ही नहीं है, आराम से तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी. दिस मेंटालिटी मेक्स दैट वेरी बॉय व्हाट, एरोगेंट. समझ में आ गई बात? तो ये एरोगेंट वही चीज हमारा है कि द रिच, अमीर लोग किसी व्यक्ति को एरोगेंट बना देते हैं. एरोगेंट की स्थिति, एरोगेंट होने की स्थिति तक लेकर के चले जाते हैं अमीर लोग, या वो धन संपदा. यस, अमीर लोग नहीं, धन संपदा. अगेन हियर पार्ट ए इज रॉन्ग, एंड व्हाट विल बी यूज्ड हियर? पार्ट ए इज रॉन्ग, एंड रिच की जगह फिर क्या हो जाएगा यहां सेकंड सेंटेंस में? रिच इज रॉन्ग, riches will be used. Riches, property. Means the riches lead one. वो संपन्नता किसी व्यक्ति को ले जाती है कहां तक?
टू बी एरोगेंट, एरोगेंट होने की स्थिति तक ले जाती है, एंड गेट डिस्ट्रॉयड एंड लीड वन टू गेट डिस्ट्रॉयड, द रिचेज लीड वन टू बी डिस्ट्रॉयड, और बर्बाद हो जाने की स्थिति तक लेकर चली जाती है वो प्रॉपर्टी। नंबर 3, मोस्ट ऑफ द पीपल एब्सटेंड themselves, एब्सटेंड है ये, एब्सटेंड ए है वो, नॉट ओ, दैट इज ए, एब्सटेंड। Most of the people abstain, A-B-S-T-A-I-N-D. Most of the people abstain themselves from attending the nuptial during the epidemic. अभी अभी मैंने चर्चा किया था, नप्सल आया वर्ड, यहां है, कहां है नप्सल? नप्सल, वेर इज नप्सल? या हियर नप्सल्स, दिस वर्ड इज नप्सल्स हियर। नप्सल मैंने बताया था इज एन एडजेक्टिव, नप्सल इज एन एडजेक्टिव, मीन्स मैरिटल, means related to marriage, but nuptials is noun, means marriage ceremonies. Marriage ceremony means the activities that are performed during the marriage ceremony is what? Nuptials. अब ये देखिए कि most of the people abstained, बहुत सारे लोगों ने abstain कर लिया, prevented कर लिया, अपने आप को बैन कर लिया खुद से, themselves अपने आप को बैन कर लिया। किस चीज से abstain? Abstain is always followed by the preposition from. जब preposition आएगा तो कुछ certain prepositions हैं जो certain words के बाद आते ही हैं। Abstain is always followed by from. Okay? Prevent is always followed by from. So here most of the people, अधिकांश लोग abstain कर लिया अपने आप को, अधिकांश लोगों ने अपने आप को prohibited कर लिया। किस चीज से prohibited कर लिया? तो from attending, फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद हमारा अटेंडिंग भी फॉर्म जिरंड आ रहा है, अपने आप को अटेंड करने से रोक लिया। अटेंडिंग व्हाट? अटेंडिंग इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, स्पेशली जिरंड इन द जिरंडिल फॉर्म। सो किस चीज में अटेंड करने से अपने आप को अब्सटेंड कर लिया भाई? तो अटेंडिंग द नप्सल। नप्सल सेरेमनी नहीं है, नप्सल है सिर्फ। तो क्या यहां एडजेक्टिव की आवश्यकता है? नो, नाउन। अर्थात क्या होगा हमारा? अटेंडिंग द नप्सल्स। किस दौरान? ड्यूरिंग द एपिडेमिक, नेम्ड कोरोना जो है अभी जो चल रहा है एपिडेमिक, उसी एपिडेमिक से रिलेटेड। तो यहां हमारा पार्ट कौन सा रॉन्ग हो गया? पार्ट बी। नप्सल एडजेक्टिव के रूप में मैंने यहां लिख दिया, जबकि रिक्वायरमेंट वहां नाउन की है। हमारा थर्ड का पार्ट बी इज एरोनियस एंड रॉन्ग वर्ड इज नप्शल, N-U-P-T-I-A-L, and this word is wrong. Right is N-U-P-T-I-A-L-S. Nuptials is right. Number 4 की ओर चले हम लोग। I want to meet him urgently. I want to meet him. मैं उससे मिलना चाहता हूं urgently, एकदम certainly कह सकते हैं, darkly needed is darkly needed. Urgently मैं मिलना चाहता हूं, but I don't know his whereabout. लेकिन मैं उसके अड्डों को जानता नहीं हूं कि वो कहां कहां रहता है भाई। आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट। कम ऑन, वेयर अबाउट कहीं लिखा है मैंने? वेयर, या फर्स्ट वर्ड इज हियर, वेयर अबाउट या वेयर अबाउट्स। क्लियर, पता चल गया हमारा कौन सा पार्ट रॉन्ग है? पार्ट सी होगा क्या हमारा यहां? वेयर अबाउट इज रॉन्ग। सो फोर्थ सेंटेंस, द एरोनियस पार्ट इज सी and whereabout is wrong, W-H-E-R-E-A-B-O-U-T, this is wrong, and whereabouts is right, W-H-E-R-E-A-B-O-U-T-S is right. Number 5 की ओर चलें। Try to get your name registered. अपने नाम को रजिस्टर्ड कराने की कोशिश करो आप। अपने नाम को ट्राई टू गेट योर नेम रजिस्टर्ड, अपने नाम को रजिस्टर्ड एंटर कराने की कोशिश करो। किस चीज में? इन द एनल ऑफ हिस्ट्री, इन द रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के रिकॉर्ड्स में। तो एनल, इन द एनल, गौर करेंगे, अभी मैंने एनल पर चर्चा किया था। एनल इज एन एडजेक्टिव, सो हियर एनल होगा यहां रिलेटेड टू द एनस, एनस से रिलेटेड, मलद्वार से संबंधित। यहां हमारा एनल आ रहा है रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के रिकॉर्ड से। सो हमारा होगा क्या? ट्राई टू गेट योर नेम रजिस्टर्ड, अपने नाम को रजिस्टर्ड कराने की कोशिश कीजिए। किस चीज में रजिस्टर्ड कराने की कोशिश कीजिए? तो इन द रिकॉर्ड्स, इन द एनल्स, इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों में, इतिहास के रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज कराइए। कुछ ऐसा कीजिए, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो।
बस यूं ही नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी नहीं. एंड कीप योरसेल्फ बिजी बिकॉज द बिजी शेड्यूल, द बिजी लाइफ इज एन इजी लाइफ. And second proverb, the next proverb is the busy schedule keeps one fit, either mentally, physically, spiritually, on all sides, in all aspects. This is right. So now here, come on. So try to get your name registered in the annal of history. No, no, no. Which part is wrong here? Part C is wrong. What is the erroneous word? Annal is wrong. A-N-A-L, annal is wrong, and annals will be right. A-N-N-A-L-S means double N. Annals, गौर करेंगे यहां सिंगल एन है, डबल एन हो जाएगा. Annals, in the annals of history, this one is right here. Come on to the next sentence and sentence number 6. Come on. So there is irritation, irritation है, जलन है, there is irritation with itching, itching के साथ, itching, yes, itching के साथ irritation है in the annals part of his body, उसके शरीर के annals part में, annals means records part, no, part noun is here, needed to be qualified. So noun, annals noun will not qualify the noun part. What is required here? Annals की जगह क्या required है? Annal part, annal area में उसे irritation है. There is irritation with itching, खुजली के साथ जलन भी है. Where is there irritation with itching? In the anal part of the body. Which part? Anal part, where the anus is located. Anal part. So here, which part is wrong? Part C is wrong here. Annals is wrong here. 6C. Annals is wrong. A-N-N-A-L-S is wrong. And correct word is A-N-A-L. This is right. Number 7. Cut this piece of cloth. इस क्लॉथ के इस पीस को कट करो, काटो विद दिस पेयर ऑफ सीजर. सीजर यार, इंस्ट्रूमेंट कहां गया? टूल्स. ये सीजर, सीजर यार, हाँ सीजर्स. ये देखिए, ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म, और यहां क्या मेंशन किया हुआ है? सीजर. सो दिस पार्ट इज रॉन्ग. क्या होगा हमारा? नंबर सी का, 7 का सी, और यहां सीजर SCISSOR इज रॉन्ग. SCISSORS is right. Okay, here this one. Number 8 की ओर चलें. Our legs work, हमारे पैर कार्य करते हैं in the seizures action during walking. Seizures तो लिखा गया है, करेक्ट है ना? आप तो कहेंगे सर हमने तो रट लिया है, सीजर्स हमारा प्लूरल फॉर्म में आ गई, और यहां तो सही है, सीजर्स लिखा हुआ है, यहां तो सीजर लिखा हुआ तो इसलिए रॉन्ग है, यहां तो हमारा रॉन्ग. ये तो क्या है? सीजर्स तो हमारा राइट है. बट सर दिस पार्ट इज रॉन्ग. हियर द वर्ड सीजर्स विल नॉट बी यूज्ड. क्या बात करते हैं सर? अभी अभी आपने कहा सीजर इज नॉट मेंशन विदाउट एस बिकॉज इट इज ऑलवेज टोंग्स इज नॉट मेंशन एज टोंग. नो, बट व्हेन यू विल गो थ्रू द डिक्शनरी, स्टैंडर्ड डिक्शनरी, आई मीन not any other dictionary, the textbook that is either related to the Cambridge University London or Oxford University London, that very press. So अब यहां मैं बात करता हूं कि ये सीजर सा हमारा इसमें रॉन्ग कैसे हो गया? सीजर होगा जब आप डिक्शनरी में देखेंगे. when you see the word seizure in the dictionary, it is mentioned as noun. SCISSOR, SCISSOR. Seizure is what? Adjective, not noun, and it is only used before noun. Only before noun. It is mentioned already before noun. Before noun means seizure shape, कैंची की शक्ल में. अब ये देखिए हमारा, या कैंची की तरह. Our legs work, हमारे पैर जो है कार्य करते हैं in the seizures action. No, seizure action. चूंकि जब चलते हैं तो देखते हैं जैसे कैंची चलती है ना, कैंची यूं, उसी तरह पैर भी तो चलते हैं. ये देखिए यूं, पैर यूं चलता है, तो सीजर्स एक्शन हुआ या नहीं हुआ?
मेरी उंगलियों पर गौर कर रहे हैं? एक पैर ये आगे बढ़ा लेफ्ट, तो फिर राइट आगे जा रहा है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, सीजर एक्शन है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा सीजर एक्शन। So here, come on. Which part is erroneous? Part B is wrong. What will be used? Seizure will be used in place of seizures. Why? Because here the word action noun is required to be qualified. What action? Seizure action. Seizure के movement में. So here our legs work. हमारे पैर कार्य करते हैं in the seizure action during walking. किस दौरान? During sleeping? During sitting? No. During walking के दौरान seizure action में कार्य करता है। मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा नंबर 8 आपका। और नंबर 8 का हमारा एरोनियस पार्ट है पार्ट बी, एंड यहां हमारा सीजर्स इज रॉन्ग, SCISSORS इज रॉन्ग, एंड राइट इज SCISSOR. दिस इज राइट एंड दिस इज एन एडजेक्टिव हियर, सीजर्स। नंबर 9, द सेकेंड लास्ट, He came to meet me in white trouser. He came to meet me in white trouser. He came to meet me. वो आया. He came, वो आया to meet me, मुझसे मिलने के लिए आया. In white trouser. In white trouser में आया. White trouser, trouser. अभी गारमेंट्स में हम लोगों ने यहां देखा था. ट्राउजर नहीं साहब, ट्राउजर्स. बिकॉज ये भी दो में होता है ना, एक राइट लेग के लिए, एक लेफ्ट लेग के लिए. नहीं, अब एक कान का तो ट्राउजर नहीं पहन करके कोई जाएगा, नहीं. इसलिए हमारा विच पार्ट इज एरोनियस है? हमारा है एरोनियस पार्ट इज बी. क्या होगा हमारा? ट्राउजर इज रॉन्ग, पार्ट बी, एंड ट्राउजर इज रॉन्ग, TROUSER इज रॉन्ग. ट्राउजर्स विल बी राइट, TROUSERS विल बी राइट. ट्राउजर्स. नंबर 10 एंड द लास्ट, हिज ट्राउजर्स लेग्स वेयर टॉर्न. ट्राउजर्स आ ही गया, अब तो राइट है हमारा. हिज ट्राउजर्स लेग्स. देख रहे हैं जिस तरह से अभी सीजर्स वाले में एक्शन नाउन यहां आया था, एक्शन नाउन हियर, उसी तरह फिर ट्राउजर्स के बाद फिर यहां लेग्स नाउन आ रहा है. कुछ समझ में आ रही है बात? फिर ट्राउजर हमारा जैसा सीजर है, ट्राउजर इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, TROUSER, ट्राउजर. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, डिक्शनरी बोल रहा है. आप गौर करेंगे अक्सर लोग ट्राउजर को बस सिर्फ जानते हैं कि नाउन है, ट्राउजर्स होता है, शायद ही रेयरली. और मैं बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन चीजों को नहीं पूछा जाता है, रेयर चीजों को जो सामान्य लोगों की जानकारी में नहीं है. इसलिए इन चीजों पर जरूर फोकस कीजिए. मैंने सेट बनाने में इसका ख्याल जरूर रखा है. सो हिज ट्राउजर लेग्स, आप मैंने बताया ना, कोई स्टैंडर्ड डिक्शनरी में आप देखें ये वर्ड सीजर भी मिलेगा एज एन एडजेक्टिव, ट्राउजर भी मिलेगा एज एन एडजेक्टिव. अब यहां हिज ट्राउजर लेग्स मींस ट्राउजर का वो गारमेंट का लेग, दो पीस में है ना, राइट और लेफ्ट, वो ट्राउजर लेग्स कही जा रही है बात. यहां लेग्स नाउन की वजह से हमारा पार्ट ए इज रॉन्ग. क्या होगा हमारा? Part A is here the answer. Trousers is wrong, TROUSERS is wrong, and trouser, TROUSER is right adjective के रूप में यहां आ रहा है. मैं उम्मीद करता हूं आज का ये सेट आपका कॉन्सेप्शन क्लियर किया होगा. यदि कहीं आपका कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं लगा हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें. मैं बार बार कहता हूं, आपके कमेंट्स का मैं बहुत ही इम्पेशेंटली वेट करता रहता हूं. जब भी मैं यूट्यूब चैनल को मैं खोलता हूं, उसमें आपके कमेंट्स को ही मैं सेक्शन को देखता हूं, मेरे व्यूअर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें क्या दिक्कत हो रही है. इसलिए प्लीज सिर्फ वेरी गुड, वेरी नाइस ऐसे कमेंट्स ना भेजें, कुछ स्पेसिफिक कमेंट आप डालें. आप स्क्रीनशॉट आप ले लें. स्क्रीनशॉट के लिए ये आपका बोर्ड यहां रेडी है ताकि आप इसे नोट कर सकें. तो फिर ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं समझता हूं आपने ले चुका होगा, आपने ले लिया होगा. ठीक है, फिर आज इसी शब्द के साथ आज का डिस्कशन यहीं ओवर होता है. फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में. थैंक यू, दैट्स ऑल.